Hello students, congratulations for qualifying stage 1, and here we are going to discuss the last year question of NTC stage 2 physics part only we will be discussing. So let's see what type of question used to come from various chapters and what level of concept you have to be keeping in mind to attempt those questions. So this is the 2009 paper SAT physics part. Let's see one by one all the questions. Here in this question the acceleration time graph is given. Good, so this is the acceleration time graph which is given in the question. And it is asking at what instant does the particle come to rest for the first time. So students, acceleration time graph, body started from rest and started accelerating, और वो 5 मीटर पर सेकंड पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सिलरेट कर रहा है 10 सेकंड तक. फिर उसने वहां से डिसलेरेट करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 20 सेकंड तक. फिर उसने वहां से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सिलरेट करना शुरू किया 20 to 30 सेकंड. तो फ्रॉम दिस ग्राफ body will come to rest means final velocity, the velocity at that instant will become zero. Body has started from rest and body is going to be rest. Change in velocity is zero. Delta v is zero. So from acceleration time graph, how could we find the velocity? Area under acceleration time graph gives us velocity. Let's say ये 0 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, यहीं कहीं टोटल 0 से लेकर t सेकंड तक यहीं कहीं पे at any position here the body is let coming to rest first time. So this is t. So we have to find the area under acceleration time graph. So this area we have to find, this area we have to find by taking this, would find the value of t, and the net area has to be 0 because body is accelerating and body is decelerating. Change in velocity is 0. So area under AT graph, change in velocity, that is we have to find the area A1 and this area A2. So this is 5 and this is 10. So the area is 10 into 5. And for this graph it is this height is 10. Total is t students. This is 10. So this will be t minus 10. So इसलिए हमने यहाँ पर t minus 10 लिए and that will be 0 because no change in velocity. Initially 0 पे शुरू किया था, finally 0 पे cancel out. Solving it, I got t is equal to 15 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हमारा अटेम्प्ट थोड़ा अलग होता, मैं बताऊंगा आपको. तो स्टूडेंट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया जो है उसी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. देखो बॉडी 0 से शुरू किया और 10 सेकंड तक एक्सीलरेट किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, तो उसका स्पीड बन गया 50 मीटर पर सेकंड. उसके बाद वो डिक्सिलेट कर रहा है 10 to 20 तक, और यहीं कहीं बीच में जो 5 आया हमारा 15 सेकंड जो आया टोटल टाइम, तो ये जो है ये 5 सेकंड है. 10 5, this total is 15, this to this is 15 second, this is 10 and this is 5, 10 5 and 20. पहली बार वो 15 सेकंड में रेस्ट पे आया है, जो क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले निकाले. तो यहाँ पर हमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो हम देखो 20 तक वो आ गया, डिसलरेट हो गया, फिर वहां से वो क्या कर रहा है, अगेन एक्सीलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड कर. तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो हमें निकालना होगा. स्टूडेंट यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया की बात अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, बट क्वेश्चन पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड एंड वी हैव टू ऐड बोथ द एरियाज. और एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस जो है वो टोटल 15 है और हाइट जो है वो 50 है, 10 into 5. और यहाँ पर भी वो 10 और 5 देख सकते हो, -50 मीटर पर सेकंड भी यहाँ से फिर जब पहुंचे यहाँ पर एग्जैक्टली उसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में भलाई हो, बट दैट इज ऑल्सो. सो यहाँ से उसने तो जब ये एरिया निकालेंगे 15 30 दैट इज 15 एंड ये वाला हो गया 50, तो हाफ बेस इनटू हाइट तो हमें 750 मीटर मिलेगा. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 30 सेकंड इज 750 मीटर. Let's see this next question. An object of mass 2 kg is moving under the action of a force which varies with time as shown in the figure. देख रहे हो ये जो फिगर है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है फिगर, फोर्स टाइम ग्राफ दिया रखा है. हाउ द फोर्स इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड तक कैसे फोर्स वेरी कर रहा है.
And which of the following statement is correct for the interval from 0 second to 20 second? 0 second से 20 second के बीच में कौन सा इंटरवल, कौन सा सेंटेंस सही है? मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हो रहा है? So change of the momentum cannot be found as initial speed is unknown. So students, वही मोमेंटम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. So force is rate of change of momentum, and the area under force time graph gives us force into time. That is change in momentum, that is also impulse. So force into time, that is change in area under this graph will give me the change in momentum. Area under the force time graph gives us change in momentum, that is delta p. So it's a vector quantity. So this area we have to find this area, and this area we have to subtract both the area of trapezium minus area of this triangle. So area of triangle trapezium, half of parallel two sides, half into sum of parallel two sides into height, minus area of triangle, half base into height. हम solve किए 15, total is 15 and this is 5, sum of parallel sides, height is 10, here 10 is given, and half base 15 to 20 base is 5 and this is 10 also, half base into height. तो पूरा सॉल्व करके हमें पॉजिटिव मिला 75 kg मीटर पर सेकंड, दैट इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. सो पॉजिटिव मींस मोमेंटम इंक्रीजेस. दैट्स द ऑप्शन बी, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 75 kg मीटर पर सेकंड. फ्रेंड्स, वीडियो को इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो वीडियो को, और क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पहले समझो, खुद से ट्राई करो. नहीं तो फिर मैं जिस तरह समझा रहा हूँ आप इस तरह फॉलो कर सकते हो सोल्यूशन को. बट देयर आर वेरियस वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. जो नॉर्मल मेथड्स होता है एक 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरह उसको समझाया गया है. सो यू जो काइंडली गो थ्रू इट एंड लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज एनिमेशन जिस तरह भी है, हम बस मैं पॉइंटर दिखा के आप लोगों को समझा रहा हूँ. तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा आराम से सुन के ही क्यों मतलब व्हाट आई एम सेइंग, वेयर आई एम शोइंग द पॉइंटर, ये थोड़ा देख के आपको मैनेज करना होगा. Two cats A and B of same mass starts from the same location at the same time, but on different straight roads. Car A travels on the road that has greater angle of inclination with horizontal compared to the road on B travels at any instant. Both A and B have the same height above the starting point. If E and if B are the total energy of car A and car B, then which sentence is correct? Students, see here, this is car A line, this is car B line. स्लोप की बात जब आता है तो स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठा रहता है पहले से कि जो ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ है, जो भी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. बस दो इंक्लिनेशन के दिया गया है. कार इस तरह जा रहा है और कार भी इस तरह जा रहा है. इंक्लिनेशन पे वो कितना स्पीड पे जा रहा है, क्या जा रहा है, तो उसकी एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है कि वो दिया हुआ है कि सेम हाइट, देखो ये सेम हाइट पे दोनों आगे. इसने यहाँ से शुरू किया, इसने यहाँ से शुरू किया. जब हाइट सेम है तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी बराबर है. पी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी. बट स्टूडेंट्स, एक एक चीज यहाँ पर, तो इंजन का कितना वार कर रहा है, कितने स्पीड पे जा रहा है, कौन ये ज्यादा इंक्लिनेशन है तो उसने ज्यादा पे गया होगा, तो इस तरह कॉन्सेप्ट को दिमाग पे मत लाना है. आपको बस ये देखना है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस गया है, और उसी टाइम पे वो कार भी जो है तो यहाँ से यहाँ तक चला गया है. सो डेफिनेटली कौन ज्यादा वेलोसिटी पे जा रहा होगा, इंजन कितना काम कर रहा है, वो वर्क मतलब इसके बारे में नहीं हो रहा है कि हाँ सर ये ज्यादा इंक्लिनेशन है, ज्यादा जा रहा होगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दिस क्वेश्चन. सिंपली आप क्वेश्चन को सोचिए कि ये यहाँ से यहाँ तक चला गया है, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये कम डिस्टेंस कवर किया है. सो डेफिनेटली दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ कार बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार ए. दैट मीन्स वी ए इज लेस देन वी वी. सो अगर वेलोसिटी इसका ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा. और जहां तक पोटेंशियल एनर्जी की बात है तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों का सेम है, बराबर, क्योंकि वो सेम हाइट पे दोनों अभी है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. तो इसलिए स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी मोर बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर, कार बी. सो एनर्जी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए, टोटल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास बिटवीन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट and a point 100 meter above it is 1000 joule per kg. How much work is required to be done in moving 5 kg object 100 meter on a slope at 30 degree to the horizontal on this planet? स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh पर यूनिट मास बाय m, दर इज, अगर m डिवाइड कर देंगे तो gh मिल गया.
there is joule per kg is 1000 kg per 1000 joule per kg। और स्टूडेंट कितने हाइट तक हम लेके जा रहे हैं उसको, 100 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो इसलिए अगर 100 मीटर डिवाइड कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स उसने इनडायरेक्टली प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना दे के वो एक्सीलरेशन जी कितना है वहां पर प्लैनेट पे उसको देने के लिए इस तरह बताया गया है उसने। अलग दिया रहेगा तो अलग निकाल सकते हैं हम। और उसके बाद क्वेश्चन में उसने जोड़ा कि मुझे कितना काम करना होगा अगर मैं एक बॉडी 5 kg जो जिसका मास है m इज 5 kg, और मुझे एक 100 मीटर में उसको लेके जाना है जबकि इंक्लिनेशन 30 है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट, मतलब 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 into 5 नहीं, ऐसा नहीं। तो वी हैव टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर, वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है। तो इसलिए वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी, ये डिस्टेंस हमें लेना, ये डिस्प्लेसमेंट हमें लेना होगा। सो दैट इज, अगर ये 100 है या 30 है तो 100 sin 30, नो इट वेल, दैट इज 50 मीटर। तो जब एम जी एच निकालेंगे तो ये वाला नहीं लेंगे 100, गलती करते हैं स्टूडेंट, 100 लेके तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये हाइट लेना होगा। तो एम इज 5, जी इज 10 जो निकाले हम फ्रॉम द गिवन डाटा, और ये हुआ मेरा हाइट, कितना हाइट को जा रहा है इस लेवल से इस लेवल तक जा रहा है। तो 5 into 10 into 50, that is 2500 joule is the answer to the question. Let's go to the next question. इस पे ये दिया हुआ है कि two identical objects A and B each of mass m start moving along the same vertical line in opposite direction at the same instant. Uh, Object A is dropped from rest and from a height h above the ground, and object B is projected vertically upward from the ground with a speed of root under 2gh. Root under 2gh. At what height above the ground do they collide? इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पहले किए होंगे। लेट्स वन सेकेंड नो, ये बॉल ऊपर से आ रहा है, बॉल ए, और बॉल भी नीचे आ रहा है। वो एक्चुअली इस तरह क्रॉस नहीं करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। वो तो डायग्राम में समझाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया। एंड बोथ आर हैविंग सेम मास, मास इज सेम स्टूडेंट्स। और वो ये भी क्वेश्चन पे दिया रखा है कि मतलब यहाँ से मैं उसको 2gh हाइट पे उसको ये कर रहा हूँ, एंड दिस हाइट इज h। ग्राउंड, टोटल ग्राउंड से जो बॉल ए है वो h हाइट पे है। मान के चलो स्मॉल h पे वो जाके कोलाइड करने वाले हैं, तो ऊपर से इस a को h माइनस h आना होगा। और लेट्स सी, और ये u जो है रूट अंडर 2gh जा रहा है और ये फ्री फॉल हो रहा है, तो इसलिए u इज इक्वल टू 0। इसको ड्रॉप किया और इसको फेंका मैंने नीचे से। तो स्टूडेंट्स जब पहले देखेंगे तो फर्स्ट बॉल ए के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन डालेंगे सेकंड इक्वेशन, तो h is equal to t plus half t square, but here it has to come h minus h, u is 0 तो हाफ gt स्क्वायर। उसी सेम टाइम पे ये h हाइट गया है और u इंटू टी, u पे हम दैट इज रूट अंडर 2gh जो है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसी टाइम पे वो उतना ही डिस्टेंस किया है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये h माइनस एच कैंसिल होकर h इज इक्वल टू यू टी आ जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, तो t इज इक्वल टू एच बाई यू। और अब इक्वेशन 2 पे उसको डालेंगे तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू यू इंटू टी के जगह पे हम h बाई यू डाले माइनस हाफ जी एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, टी के जगह पे डाले हम। तो उसको डालने के बाद h माइनस ये यू कैंसिल होकर h माइनस हाफ जी एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सो दैट इज h हाफ जी एच स्क्वायर। यू स्क्वायर की जगह पे हम 2gh डाल सकते हैं जो कि क्वेश्चन पे गिवन है। तो यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, तो h माइनस h बाई 4 दैट इज 3h/4। सो बोथ द बॉल आर गोइंग टू कोलाइड एट ए हाइट ऑफ 3h/4 यहाँ से फ्रॉम द ग्राउंड। Small h is equal to 3h/4. That is the answer to the first part of the question. Student second part उसी क्वेश्चन से पूछ रहा है कि after they collide they stick to each other, मतलब चिपक जाते हैं दोनों बल, and what is the loss in their total energy, मतलब शुरू पे कितना एनर्जी था दोनों के पास मिला के, अभी दोनों चिपकने के बाद मतलब स्टिक टू ईच अदर होने के बाद कितना एनर्जी हो रहा है। तो व्हाट इज द लॉस इन द एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट पहले अगर इनिशियल एनर्जी की बात करें U1, तो ये जो मैं उसको फेंक रहा था उस पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, ओनली काइनेटिक एनर्जी था। सो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर जो था, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2gh का स्क्वायर, तो हाफ एम रूट अंडर 2gh एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच जो यहाँ पर था किसके पास, बॉल बी के पास, क्योंकि ये एच हाइट पे था, मास सेम है। और एम जी स्टूडेंट यहाँ पर रूट अंडर 2gh होगा, इट विल बी रूट अंडर 2gh। So root under 2gh यहाँ पर आप कर सकते हो, you could make it here। और रूट अंडर 2gh का स्क्वायर हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको, it could be रूट अंडर 2gh। okay?
तो ये रूट अंडर 2gh हो सकता है, का स्क्वायर हो गया तो 2gh, तो कैंसिल होके टू कैंसिल, mgh प्लस mgh कितना हो गया 2 mgh, दैट इज द इनिशियल एनर्जी। चलो अभी देखते हैं, जब ये ऊपर से नीचे तक आया h/4 आया जब, तो यहाँ पर वेलोसिटी मान के चलो v1 है, और जब यहाँ पर जब ये कोलाइड करने से पहले उसका वेलोसिटी v2। तो स्टूडेंट्स यू नो ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है, तो v स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो 2g ये h/4 आया है, तो इसीलिए h/4 डाला मैंने बॉल ए का v1 वेलोसिटी, सो दैट इज gh/2 का रूट ओवर आया। और सेकंड केस पे ये जो यहाँ से जा रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u है 2gh का स्क्वायर, तो u स्क्वायर, तो रूट अंडर 2gh, तो ये 2gh हो गया, 2g इंटू h जो है दैट इज 3h/4। सो इसको ही सॉल्व करते हुए हमें मिला v2 स्क्वायर इज इक्वल टू gh/2, तो v2 इज इक्वल टू gh/2। उसका ये मतलब है कि दोनों जब इस साइड पे कोलाइड कर रहे हैं तो उससे पहले v1 एंड v2 सेम था, दोनों का सेम वेलोसिटी। फ्रेंड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after collision, final and initial remain same। तो टू मास, क्योंकि दोनों चिपक जाएंगे तो कॉमन वेलोसिटी कुछ आ जाएगा 2mv इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब तो दोनों का जस्ट बिफोर कॉलिजन mv1 माइनस mv2, जो कि v1 v2 सेम है, तो 0 0 हो गया, तो इट बिकम 0। तो v इज इक्वल टू 0, देन एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, तो दे कोलाइड एंड स्टिक टू ईच अदर। तो फ्रेंड फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, वहां पर मास तो डबल हो गया, दोनों का मास mm, वो कोलाइड करके स्टिक चिपक गया दोनों, अभी कॉमन मास हो गया m प्लस m2m, g इज mg, और पोटेंशियल एनर्जी की जब बात हो रहा है तो हाइट कितना है 3h/4, तो डाले हम, सो दैट इज 3/2 mgh इज द फाइनल एनर्जी उन दोनों में रहेगा जब कोलाइड करके स्टिक करने के बाद। तो चेंज एनर्जी कितना हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3/2 mgh माइनस 2 mgh, दैट इज हाफ mgh। So the required answer is half mgh is the loss in their total energy। स्टूडेंट्स ये साउंड के ऊपर क्वेश्चन है। Given below there are two different graphs, variation of density or pressure of a medium with position, मतलब दो ग्राफ दिखाए गए, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। वेव passes through the medium, तो मुझे वेव की स्पीड निकालना है इस दोनों वेव से। स्टूडेंट ये जो है ना वो पोजीशन दिया हुआ है, मतलब कितना डिस्टेंस जा रहा है वेव फ्रॉम, एक्सेलेरेशन वेव है ये 50 100, तो पूरा एक जो वेव बना यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। सो इस ऊपर वाले ग्राफ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्बडा जो है वो 100 सेंटीमीटर है, सो दैट इज 1 मीटर। और स्टूडेंट यहाँ पर उसी वेव का जब हम टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है यहाँ से जाके यहाँ तक, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक, नहीं तो फिर अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल है। 1 2 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सेकेंड, और मिली सेकेंड पे दिया हुआ है, सो दैट इज टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल इज 2 मिलीसेकंड, तो इसलिए टाइम इज इक्वल टू मिलीसेकंड, दैट इज 2 into 10 to the minus 3। यू नो वेव स्पीड दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, वेवलेंथ बाय टाइम। सो वेवलेंथ तो 1 मीटर आया, टाइम 2 मिलीसेकंड आया, तो 1000/2 दैट इज 500 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स से आया था, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस भी है, जब दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है and both are separated by a distance of 2 centimeter। So it is asking if the light is incident from left, अगर यहाँ से light incident हो रहा है तो combination of lens किस तरह behave करेगा। Students you know जब when the two lenses are placed at its distance d apart, so 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2। So there is 1 by 10 minus 1 by 10 minus 2 by 10, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है कॉनकेव लेंस से, कन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया और यहाँ पर माइनस, दोनों को सॉल्व करके हम मिला 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/100। सो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से आया है, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये पूछ रहा है कि देयर इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू मेंटेन द करंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द होल सर्किट। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी इज वर्क, सो दैट इज द वर्क डन ओनली आई स्क्वायर आर, सेम टाइम के लिए तो आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर ले सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट अब ये देखना है कि ए बी और पूरा सर्किट पे कितना हो रहा है। तो जब टोटल सर्किट के बारे में बात होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये सारे 1 ओम दिया हुआ है तीनों, तो 1/3, और ये दोनों सीरीज पे लगा हुआ है 2 + 2 4, तो दैट इज 1/3 + 4 दैट इज 13/3 ओम।
और अगर टोटल करंट की बात करें तो V बाई आर, और यहाँ पर V 1.3 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन पे। सो 1.3 बाई 13/3, तो 3/13, तो दैट इज 0.3 एम्पियर हो गया टोटल करंट। सो जब पहले की बात करेंगे तो जब ए बी, आस्किंग द रेशियो बिटवीन ए बी टू टोटल, सो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/3 होगा। सो आई मान के चलो वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आरडेंस फॉर दिस थ्री ए बी के बीच में, जो कि हम बाद में 1/3 डालने वाले हैं। और यहाँ पर सेम करंट जा रहा है, और आर इक्विवेलेंट टोटल कितना करंट जा रहा है सर्किट पे, तो आई आई सेम हो गया, कैंसिल। सो ये R1 बाई आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर R1 ए बी के बीच में 1/3 है, और टोटल सर्किट में 13/3 है। सो दैट इज 1/13 इज द आंसर टू द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वर्क डन। स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, जो कि यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर दिया होगा, बट स्मॉल आर लिए हैं, नो प्रॉब्लम। So B is inversely proportional to, directly proportional to I by R, and its direction is given by the right hand thumb rule. And magnetic field at the center of the circular arc subtended an angle theta, जो कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन, और ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ये फिगर, ये दोनों फिगर 3 एंड फिगर 4 क्वेश्चन पे दिया हुआ है। And that magnitude is B is equal to 1 I by R theta by 360, and its direction can be found using right hand thumb rule. You know right hand thumb rule, clockwise, anti clockwise, outward, inward, वही सब हम डालने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आर है और ये आर्क है, और फिगर 3 पे ये दिया हुआ है कि फिगर 3 पॉइंट सी एंड डी आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, एंड यहाँ पर जैसे आ रहा है करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, और फिर दोनों मिलके इस तरफ जा रहे हैं। और फिगर 4 में ये दिया हुआ है कि ये 120 डिग्री है, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, और ये वायर ऐसे लगा हुआ है 120 डिग्री एंगल पे। तो वही हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिमार्क देना है कि यहाँ पर O1, ये पहले वाला केस पे और सेकंड वाले केस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा रिलेशन। फ्रेंड्स, चलो एक जनरलाइज फिगर के ऊपर पहले चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर इन ए सर्कुलर लूप और आर्क, मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर दिया हुआ है I बाई आर थीटा बाई 360, एक्चुअल एक्सप्रेशन है म्यू नॉट इंटू कितना करंट जा रहा है आर्क पे, म्यू नॉट I1/2R इंटू, फ्रेंड्स थीटा बाई 360 था, 360 को मैंने 2 पाई बना दिया, एंड थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, तो इसलिए हमने ऊपर वाला मानो कि ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उसको L1 मान के चलते हैं, बाय रेडियस इज R। तो जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई, तो म्यू नॉट I L1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। सो एक मिनट इसको चेंज करवा देते हैं। So this is friends nothing but it is 4 pi r square. This is uh, this is 4, this is to multiply होके 4 to 4 pi r square, okay. So next अगर हम देखेंगे तो ये हो गया मेरा टाइम है 4 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल जब डालोगे तो इस पे जब करंट, आप देख सकते हो कि अगर आप वहां पर राइट हैंड थंब रूल डालो, पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स योर स्क्रीन, और आप ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, द करंट इज गोइंग इन द encircled fingers जो है वो ऊपर की तरफ, एंड दैट इज क्लॉकवाइज, सो इट विल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। तो इसलिए हम क्रॉस करके ऊपर इसके लिए यहाँ पर पॉइंट हो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। और जब नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे इस तरह की, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2/2R इंटू L2/R, क्योंकि ये वाला मान के चलो L1 है, और ये जो छोटा सा वाला आर्क हम लिए है उसको L2 मान के चलो, तो L2/2πR। तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आउटवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट I2L2/4πR²। स्टूडेंट्स, एक पे ऐसे जा रहा है और एक पे अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, तो बी नॉट होगा B1 माइनस B2। यहाँ पर और एक चीज देखते हैं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, so I into L is equal to constant for the particular circuit, so I1 L1 is equal to, I could say, I2 L2। तो यहाँ पर जब हम बी नॉट निकालेंगे तो म्यू नॉट I/4 पाई स्क्वायर बाहर चला जाएगा, I1 L1 माइनस I2 L2 जो कि कांस्टेंट रहेगा सर्किट पे हमेशा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तो नेट विल बी 0। तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी केस पे, इस तरह के केसेस पे, बोथ O1 क्यों ना हो और O2 क्यों ना हो, बोथ O1 एंड O2 बोथ आर 0। तो फिर से स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के ऊपर और एक क्वेश्चन, ये ए बी एक पिन है, ए टू बी इज ए पिन,
जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है and is kept on the axis of a convex lens between 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। और जिस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, अगर ये फोकल लेंथ 10 है तो 2f में एक एंड 18 और 20 के बारे में बात हुआ है, तो दूसरा एंड एक एंड ए जो है वो 20 पे है एग्जैक्टली, और बी जो है वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो स्टूडेंट, when object is on 2f1 then image will be also at 2f2। और ये नीचे की तरफ होगा, हम गलत दिखाएं, ये इट विल बी, ये इस तरह होगा इन्वर्टेड ऊपर की तरफ, बस जानना मतलब टू लेट यू नो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 2f1 है और ये 2f2 पे बन गया है। अभी बात है कि ये जो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो अगर u हम -18 ले लिए और f को +10 ले लिए क्योंकि कॉन्वेक्स, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, उसी को डालते हुए हमें सॉल्व करके मिला v2 इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो b का एंड बनेगा वो 22.5 पे बनेगा। तो यहाँ तक तो 20 है, तो बाकी इमेज का अभी लेंथ ऑफ द पिन कितना हो गया, इमेज का जो बना तो उसका लेंथ कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, so 2.5 by 2, that is magnification, that is 25 by 20, 5 by 4, that is 1.25 is the required answer. So this is another question on electricity and last question of the last 2009 का जो DC stage to physics question। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करंट सप्लाइड, हमें निकालना है करंट कितना सप्लाई हो रहा है इन द सर्किट बिलो। ईच रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट इज ऑफ 1 किलो ओम, एंड जो ये बीच में जो पोटेंशियल यूज हुआ है 8 वोल्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, उसके बीच में 8 वोल्ट दिया गया है। क्या ट्रिक है इस सर्किट को, आप शायद सॉल्विंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब, अपोजिट डायगोनल, फेस डायगोनल, ईच साइड, ये सब आप निकाल चुके होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स है हेक्सागन की, तो हेक्सागन के सारे पॉइंट्स जो है वो नो रेजिस्टेंस इज देयर, तो ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल, तो इस सारे सी पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं। तो पॉइंट सी इज ऑफ सेम पोटेंशियल, तो ए और बी के बीच में बैटरी लगाया गया, ए और बी के बीच में मैंने बैटरी लगवाया, और बीच में सी है जो सी ए के साथ भी कुछ हिस्सा तक जुड़ा है और सी का कुछ बी तक भी जुड़ा है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जब ए की बात करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 रेजिस्टेंस ए के साथ जुड़े हुए हैं, और सारे पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो एक टर्मिनल पाए जाएंगे, तो ऑल 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये बी के साथ अगर देखेंगे तो 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस जो है वो भी पैरेलल लगा हुए हैं, तो इसीलिए मैं सर्किट को रीड्रॉ किया एंड वोल्टेज इज 8 वोल्ट। तो 1 किलो ओम, तो 1/5 क्योंकि 5 पैरेलल पे है, सारे सेम है। 3 है पैरेलल पे, तो 1/3, तो 3 + 5 इक्वल 15 किलो ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। To find the current I is equal to V by R equivalent, so that is 8 by R equivalent is 8 by 15 kilo into 10 to the 3। तो जब ऊपर चला जाएगा तो 8 8 कैंसिल होगा, तो 15 into 10 to the -3, that is 15 milliampere is the answer to the question।